شیر خان کی حالت یہ تھی کہ وہ بانس کے درختوں کے نیچے ننگی اور گیلی زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی کمر کی بائیں جانب اسے ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی کمر کے نیچے کوئی کانٹا اتفاق سے آ گیا ہے جو اسے چبھ رہا ہے۔ وہ یہی سمجھا ہوا تھا کہ اسے یہی اذیت دی گئی ہے کہ وہ ساری رات بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ زمین پر اس طرح سیدھا پڑا رہے کہ ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکے۔ دونوں سپاہی رائفلیں تھامے اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے۔ شام کا سرمئی دھند لگا آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں گھل مل رہا تھا۔ ایک سپاہی اٹھا اور اس نے شیر خان کے سرہانے کی جانب ایک پتھر رکھ کر اس پر بڑی موم بتی روشن کر دی۔ شیر خان کا جکڑا ہوا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ وہ صرف اپنی گردن ہی ہلا سکتا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں جہاں کانٹے کی چبھن محسوس ہو رہی تھی وہاں کسی چیونٹی نے کاٹا ہو، مگر یہ چیونٹی نہیں تھی بلکہ بانس کی کومپل کی سخت سوئی زمین کے اندر سے تھوڑی باہر نکل آئی تھی۔ چبھن نہ تو کم ہو رہی تھی نہ بڑھ رہی تھی، ایک سطح پر آ کر رک گئی تھی۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اگر کسی چیونٹی نے کاٹا ہو اور اس جگہ کو کھجایا نہ جائے تو درد کی چبھن تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی چبھن ہے کہ مسلسل ایک ہی سطح پر برقرار رہے۔ جنگل میں بڑی وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں سنتری باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ اتنے میں شیر خان کو ان کے سائے ہی نظر آ رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ شیر خان کی کمر میں چبھن کی لہر مسلسل جاری تھی اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کبھی اسے خیال آتا کہ ایک چیونٹی بار بار اس کی کمر پر کاٹ رہی ہے، کبھی وہ سوچتا کہ شاید وہ کانٹا جو اس کی کمر کے نیچے آ گیا تھا اس کی کمر میں گھس گیا ہے۔ کوئی ایک شے واضح ہو کر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ رات شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید گزر گئی تھی کہ اچانک چبھن کی تکلیف ایک دم بڑھ گئی۔ شیر خان کو لگا کہ اس چیونٹی نے اس کی کمر پر اس دفعہ بڑے زور سے کاٹا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جسے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قدرت کے نظام کے تحت بانس کی کومپل جوش نمو میں زمین کے اندر سے تھوڑی سی اور نکل کر شیر خان کی کھال میں گھس گئی تھی۔ ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے کے بعد بانس کی تیکھی کومپل زمین میں سے تھوڑی سی اور باہر نکل کر ایسے شیر خان کی کمر میں مزید گھس گئی جس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اس وقت شیر خان کو محسوس ہونے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کی کمر کا وہ حصہ جہاں بانس کی کومپل گھسی ہوئی تھی ایسے جکڑا گیا تھا جیسے کسی نے شکنجے میں کس دیا ہو۔ اب شیر خان کو اپنی کمر میں کھال کے اندر کسی لمبے کانٹے کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس وقت شیر خان پر یہ راز کھلا کہ اس کو بانس کی کسی کومپل کے اوپر لٹا دیا گیا ہے اور زمین کے اندر سے بانس کی کومپل باہر نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ صبح تک بانس کی کومپل نیزے کی طرح اس کے جسم سے باہر نکل چکی ہوگی اور وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس چیف نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوا تھا کمانڈو شیر خان اس فیصلے کے خلاف مدافعت یا مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے دو ایک بار پاؤں کو جھٹکنے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح ان میخوں کو اکھاڑ سکے جس کے ساتھ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، مگر اسے اس طریقے سے جکڑا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو جھٹک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے چت لیٹے لیٹے دیکھا کہ دور جنگل کے درختوں میں کسی گاڑی کی بتیاں روشن ہو گئی ہیں اور یہ روشنی قریب آ رہی ہے۔ اب اسے گاڑی کے انجن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پھر ایک جیپ وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیپ کی بتیاں بجھائی نہیں گئی تھیں بلکہ روشن ہی تھیں۔ شیر خان نے دیکھا کہ جیپ میں سے دو مسلح گارڈ کے ساتھ چیف مالک رام آہستہ سے اترا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دو لمحے تک وہ کمانڈو شیر خان کو زمین پر پڑے دیکھتا رہا، پھر بولا تم ابھی تک زندہ ہو، کوئی بات نہیں، صبح کو تمہاری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ شیر خان کی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں مگر وہ شدید سے شدید درد برداشت کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا تم مجھے موت سے نہ ڈراؤ، موت تو ایک مجاہد کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ چیف مالک رام نے کہا اب بھی وقت ہے، اگر تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو تو تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے، نہیں تو جو بانس کی شاخ نیزے کی طرح تمہاری کمر میں دھنس رہی ہے صبح تک تمہارے سینے سے باہر آ چکی ہوگی۔ کمانڈو شیر خان بولا مجھے 1000 بار مرنا قبول ہے مگر میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جلاد صفت مالک رام نے کہا تو پھر مرو، نرک میں جاؤ۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا اور جنگل میں پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ صرف ایک موم بتی تھی جو شیر خان کے سرہانے کی جانب کچھ فاصلے پر جلتی جلتی آتی رہ گئی تھی۔ دونوں سنتری کچھ دیر تو شیر خان کے چاروں طرف چل پھر کر پہرا دے رہے تھے، پھر وہ درخت کے نیچے اپنے پہلے والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ درد جب ایک حد سے گزر جائے گا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اسے اپنے ساتھی مجاہدوں کا خیال آنے لگا لیکن جلد ہی اپنے ساتھیوں کا خیال دل سے نکال دیا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ درد کی ٹیسیں ایک لہر کی طرح اس کے کمر کے نیچے سے اٹھ کر سارے جسم میں پھیل رہی تھی۔ شیر خان دل میں کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ جلاد صفت مالک رام کو گئے 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہی جیپ دوبارہ آ گئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں شیر خان پر پڑ رہی تھیں۔ جیپ میں سے 3 سپاہی اترے۔ انہوں نے وہاں پر پہلے سے پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور دونوں سپاہی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھوڑوں کی مدد سے وہ میخیں زمین میں سے اکھاڑ دی جن کے ساتھ شیر خان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔
फिर उन्होंने शेर खान को उठाकर बिठा दिया। जमीन से ऊपर उठते वक्त शेर खान को महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में धंसी हुई कोई सलाख बाहर निकल आई हो। उसे चैन सा आ गया। सिपाहियों ने उसके दोनों हाथ पीछे बांधे, पाँव की रस्सियां खोल दी और उसे चलाते हुए जीप में लाकर बिठा दिया। दो सिपाही राइफलें तानकर जीप के पीछे खड़े हुए। दो मुसल्ला सिपाही कमांडो शेर खान के दाएं बाएं बैठ गए और जीप वापस रवाना हो गई। शेर खान समझ गया कि ऊपर से ऑर्डर आ गए होंगे कि उसे जान से न मारा जाए। बहरहाल जान बच जाने पर कमांडो शेर खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो एक बार फिर जहाद में हिस्सा ले सकेगा। रातों रात शेर खान को सतीलगढ़ टॉर्चर सेंटर की एक डिस्पेंसरी में पहुंचा दिया गया। वहां एक सफेद कोट वाले डॉक्टर या कंपाउंडर ने उसे स्ट्रेचर पर पेट के बल लिटा दिया और कमर पर जहां बांस की सुई उसके जिस्म में दाखिल हुई थी खून साफ किया और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। एक हफ्ते तक कमांडो शेर खान का इलाज होता रहा। इस दौरान चीफ मालिक राम उसके पास आकर उसकी झूठी दिलजोई भी करता रहा और बड़ी अजारी से उसको कायल करने की कोशिश भी करता रहा। जब शेर खान का जख्म भर गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसे एक बार फिर जमीन दोज कोठरी पुराने वाले तहखाने में बंद कर दिया गया। वहाँ मालिक राम ने आकर उससे कहा, आईजी साहब ने तुम्हें इस शर्त पर जिंदगी की मोहलत दी है कि तुम हमें अपने साथियों के नाम बता दो और ये बता दो कि वो कौन लोग थे। ये यकीन रखो कि हम उनका सुराग लगा लेंगे, वो लोग पुलिस से बचकर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी एक तो जान बख्शी हो जाएगी और दूसरे हमें ज्यादा बकबक झकझक नहीं करनी पड़ेगी। शेर खान ने कहा, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा। आप मुझे आदमखोर शेरों के आगे डाल दें, चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, फिर आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बाकी रही जिंदगी की मोहलत देने की बात, तो आपका आईजी पुलिस कौन होता है मुझे जिंदगी की मोहलत देने वाला? उसका खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं कि कब मौत आकर उसका गला दबा देगी। वो मुझे जिंदगी की मोहलत क्या देगा? मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तुम लोग मुझसे जो गैर इंसानी सलूक कर रहे हो बेशक करते चले जाओ, मेरी जबान पर मेरे साथियों का नाम कभी नहीं आएगा। अगर अल्लाह ने मेरी मौत तुम्हारे हाथ में लिखी है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जल्लाद सिफत मालिक राम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं देख लूंगा कि तुम कैसे जबान नहीं खोलते। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है और अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। मालिक राम गुस्से से फुनकारता हुआ चला गया। शेर खान का ख्याल था कि एक बार फिर तहखाने में सांपों की पटारी फेंक दी जाएगी जिसमें इस दफा बहुत जहरीले सांप होंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। रात गुजर गई। तहखाने की सीढ़ियों में दिन की रोशनी तहखाने के तहाने पर रखे हुए आहनी फ्रेम की जालियों में से निकल कर पड़ने लगी थी। एक मुसल्ला संतरी उसके लिए 2 बासी रोटियां और दाल लेकर आ गया। एक मुसल्ला सिपाही उसके पीछे नमूदार हुआ। वो तहखाने के सीने में राइफल तान कर खड़ा हो गया। उसके हाथ खोल दिए गए। सिपाही ने कहा, जल्दी जल्दी से खा लो, कल तुम्हें कुछ खाने पीने की हाजत नहीं रहेगी। शेर खान समझ गया कि ये लोग उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर चुके हैं। इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने जिस्म जान के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए बासी दाल रोटी जहर मार कर ली, क्योंकि उसका ईमान था कि अगर उसकी मौत अभी नहीं लिखी गई तो मालिक राम का बाप भी उसे नहीं मार सकता। सिपाही उसके हाथ रस्सी से पीछे बांध कर चले गए। दोपहर को उसे 4 मुसल्ला सिपाही एक करीबी तालाब पर ले गए जहां उसने मुंह हाथ धोया। जब तक वो तालाब पर रहा सिपाही राइफलें ताने उसको अपने हिसार में लिए रहे। उसके बाद दोबारा उसके हाथ पीछे बांध दिए गए और उसे तहखाने में डाल दिया गया। दोपहर के बाद उसे एक बार फिर 2 बासी रोटियां और दाल दी गई। उस वक्त सिपाही ने कहा, भोपत जी, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। तहखाने में 3 मुसल्ला सिपाही आए हुए थे। जब शेर खान जहर मार कर चुका तो उसके दोनों हाथ पीछे बांधने के बाद उसकी आंखों पर भी काली पट्टी कसकर बांधी गई। तीनों सिपाही उसे पकड़कर तहखाने से बाहर ले आए। काली पट्टी में से शेर खान को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे एक बैलगाड़ी में बिठा दिया गया और बैलगाड़ी चल पड़ी। शेर खान ने सोचा कि ये लोग उसे जंगल में किसी जगह शूट करने के लिए ले जा रहे हैं। शेर खान ने दिल में कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया। उसने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया था। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। बैलगाड़ी जंगल में चलती रही। फिर एक जगह बैलगाड़ी रुक गई। शेर खान को गाड़ी में से 2 मुसल्ला सिपाहियों ने पकड़कर उतारा। शेर खान को कुछ मालूम नहीं था कि वो जंगल में किस जगह पर आ गया है। जी हम आपको बताते हैं कि जंगल में वो कौन सी जगह थी जहाँ बैलगाड़ी आकर रुकी थी। वहाँ चंद कदमों के फासले पर एक अंधा कुआं था जो एक मुद्दत से बंद पड़ा था। इस कुएं की गहराई 30 फीट के बराबर थी और उसका कतर यानी गोलाई 10 फुट से कम नहीं थी। जल्लाद सिफत मालिक राम ने सतीलगढ़ के जंगल में टॉर्चर सेंटर कायम करने के बाद जब इर्द गिर्द के जंगल का सर्वे किया तो उसे ये अंधा कुआं नजर आया था। मालिक राम के वहशियाना और जालिमाना अज़ाइम की तस्कीन के लिए ये कुआं बड़ा मौजूद था। मालिक राम इस बात का कायल नहीं था कि किसी मुजाहिद को एकदम से गोली मारकर हलाक किया जाए। उसका ख्याल था कि इस तरह तो मुजाहिद को अचानक मौत आ जाती है और मौत उसको जिस्मानी अजियतों से अचानक निजात दिला देती है। वो ज़ेर तफ्तीश मुजाहिदों को तड़पा तड़पा कर मारने का कायल था। चुनांचे उसने उस कुएं का एक आदमी उसमें उतार कर अच्छी तरह से जायजा लिया। उसे मालूम हुआ कि कुएं में झाड़ झंकार और गले सड़े पत्तों की वजह से हर वक्त जहरीली गैस खारिज होती रहती है। उसके अलावा उसे बताया गया कि कुएं की तह में सांपों के बिल भी देखे गए हैं, जिसका मतलब था कि इस अंधे कुएं में सांपों का बसेरा था। मालिक राम ये करता कि जो ज़ेर तफ्तीश मुजरिम या मुजाहिद तशद्दुद के बावजूद जबान न खोलता उसे उस अंधे कुएं में फेंक देता। ऊपर से कुएं का मुंह लकड़ी के ढक्कन से बंद करके ऊपर भारी पत्थर रख देता।
कुएं के अंदर जिसे फेंका जाता वो या तो भूखा प्यासा मर जाता और या फिर किसी सुराख में से कोई जहरीला सांप निकल कर डस लेता और उसकी मौत वाक़ हो जाती। इस अंधे कुएं में चीफ मालिक राम 10-12 बदनसीब इंसानों को फेंक चुका था, जिनकी हड्डियों के पिंजर अंधे कुएं में ही पड़े थे। अगर बदनसीब शख्स सांप के डसने से बच जाता तो कुएं से उठने वाली जहरीली गैस की वजह से दम घुटकर मर जाता। इस कुएं का नाम मालिक राम ने मौत का कुआं रखा हुआ था। जब मालिक राम के तरह तरह के तशद्दुद के बावजूद कमांडो शेर खान ने जबान न खोली तो उसने शेर खान को अंधे कुएं में फेंकने का फैसला कर लिया। इसकी उसने ऊपर से इजाजत भी ले ली थी। चुनांचे इसी मकसद के लिए कमांडो शेर खान को बैलगाड़ी में बिठाकर वहां लाया गया। मालिक राम खुद भी साथ आया था। शेर खान को जब अंधे कुएं की मुंडेर पर लाकर खड़ा कर दिया गया तो मालिक राम ने हुक्म दिया, इसकी आंखों की पट्टी खोल दो। एक सिपाही ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। शेर खान ने देखा कि डूबते सूरज की फीकी रोशनी में जंगल में जहां उसे खड़ा किया गया है उसके आगे एक गहरा कुआं है जिसकी गोल मुंडेर पर घास उगी हुई है। ये घास इस बात का इशारा करती थी कि ये कुआं वीरान और अंधा है। मालिक राम उसके सामने कुएं की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। शेर खान के हाथ बंधे हुए थे। उसको 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। मालिक राम ने कहा, अभी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम सारी उम्र जिंदा रहोगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। अगर न मानी तो तुम्हें इस कुएं में फेंक दिया जाएगा जो तुम्हारे एक कदम आगे है। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? शेर खान ने कहा, मुझे वो जिंदगी हरगिज कबूल नहीं जो मुझे अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी के नस्बुलैन से गद्दारी करने के इवज मिले। मेरा ईमान सलामत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मालिक राम ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। शेर खान ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। अगर खुदा ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो मैं उसे हंसकर गले लगाता हूँ। मालिक राम ने सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने जो शेर खान को पकड़कर कुएं की मुंडेर पर खड़े थे उसे अंधे कुएं में धक्का दे दिया। शेर खान अपने दोनों हाथों से अपने सर को नहीं ढांप सकता था ताकि चोट न लगे, क्योंकि उसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे बंधे हुए थे। उसने वही किया जो इस सूरत में करने की तरबियत दी गई थी। उसने गिरते साथ ही अपने आप को दोहरा करके पहले रुख पर कर लिया ताकि नीचे उसका सर और टांगे टूटने से महफूज रहें। कुएं की गहराई करीब 30 फुट थी। ये बड़ी गनीमत रही कि वो पत्थरों पर गिरने की बजाय गले सड़े पत्तों, घास फूस और दरख्तों की गिरी पड़ी शाखों और इंसानी ढांचों के पिंजरों पर गिरा। उसके फौरन बाद चीफ मालिक राम के हुक्म पर कुएं को लकड़ी के गोल तख्ते से ढांप कर उसके ऊपर 2 भारी पत्थर रख दिए गए। मालिक राम ने एक सिपाही से कहा, तुम यहाँ आज की रात पहरा दोगे, कल सुबह ये तसल्ली करने के बाद ये कश्मीरी जासूस मर चुका है, तुम वापस अपने सेंटर में आ जाओगे। अपनी तरफ से मालिक राम शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके बैलगाड़ी में सवार होकर वापस चला गया। सिर्फ एक संतरी पीछे रह गया जो अंधे कुएं के एक करीबी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और पांव लटकाकर सिगरेट पीने लगा। शेर खान ने गिरते ही सबसे पहले ये जायजा लिया कि उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी। घास फूस और गले सड़े पत्तों ने उसे चोट लगने से बचा लिया था। कुएं को ढांप देने से अंदर अंधेरा छा गया था, अगरचे बाहर अभी दिन की रोशनी बाकी थी। शेर खान की हड्डी पसली सलामत थी। एक रुख पर गिरने और इंसानी हड्डियों के पिंजरों के ऊपर गिरने से उसकी एक जानिब की कूल्हे की हड्डी दर्द करने लगी थी। कुएं में गले सड़े पत्तों की वजह से नागवार बू पैदा हो रही थी। शेर खान ने पहला काम ये किया कि अपने आप को हल्के हल्के झटकों से धकेलते हुए कुएं की दीवार के पास ले गया, जहाँ जगह थोड़ी ऊंची और दरख्तों की झाड़ियां खुश्क थी। उसने कुएं की दीवार के साथ पुष्ट लगा ली और पीछे बंधे हुए हाथों से दीवार को टटोला। दीवार की चुनाई में ईंटें भी इस्तेमाल हुई थी और पत्थर भी। कहीं कहीं दीवार में घास उग रही थी। कमांडो शेर खान ने दीवार में से बाहर निकले हुए एक पत्थर को चुन लिया और उसके साथ हाथों पर बंधी रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर दिया। ये बड़ा सब्र तलब काम था और शेर खान सब्र करना जानता था। सब्र उसके मुसलमानी ईमान का एक हिस्सा था। उसे अल्लाह ताला का फरमान जात था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दीवार का पत्थर नोकीला था, हमवार था, सिर्फ उसका एक किनारा जरा सा उभरा हुआ था। शेर खान हाथों की रस्सी को उसी किनारे पर रगड़ रहा था। देर तक वो दोनों बंधे हुए हाथों को पत्थर के किनारे पर रगड़ता रहा। आखिर वो थक गया और रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर बंधे हुए हाथों की रस्सी को उसी जगह से रगड़ने लगा। रस्सी बड़ी मजबूत थी, उस पर पत्थर की रगड़ का बहुत कम असर हो रहा था। वक्फे वक्फे से शेर खान 2-3 घंटों तक रस्सी को रगड़ता रहा। आखिर उसे सब्र का इनाम मिल गया। रस्सी की एक गांठ कट गई, अब दूसरी गांठ बाकी थी। उसने उसे भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की धार से रगड़ना शुरू कर दिया। उसे मजीद 2 घंटे लग गए। फिर रस्सी की दूसरी गांठ भी कट गई। शेर खान ने हल्का सा झटका दिया और उसके दोनों हाथ आजाद हो गए। वो दोनों कलाइयों को सहलाते हुए कुएं की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुएं में गले सड़े पत्तों की नागवार बू फैल गई थी, मगर इस बू में जहरीला अंसर ज्यादा मिकदार में नहीं था, लेकिन हर सांस के साथ थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके फेफड़ों में जरूर जा रही थी, जो उसे कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बेहोश कर सकती थी और उसके बाद बेहोशी में ही उसकी मौत वाक़ हो सकती थी। शेर खान को इससे पहले कुएं से निकलने की कोशिश करनी थी। शेर खान ने उठकर कुएं की दीवार को दोनों हाथों से टटोल कर देखने की कोशिश की। दीवार ईंटों और पत्थरों को मिलाकर गारे से बनाई गई थी। बहुत पुरानी होने की वजह से कहीं कहीं से ईंटें और पत्थर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे। कुएं का कतर यानी गोलाई 10-12 फुट थी और शेर खान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो
कुएं की दोनों दीवारों पर पांव फंसा कर ऊपर चढ़ सकता। उसे कुएं से हर हालत में बाहर निकलना था। वो अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर ये सोच रहा था कि कुएं में से किस तरकीब के साथ बाहर निकला जा सकता है। वो बैठ गया और अंधेरे में इधर उधर हाथ फेरने लगा। एक इंसानी खोपड़ी उसके हाथ में आ गई। उसने उसे छोड़ दिया। फिर अंधेरे में इंसानी पिंजर की पस्तियों पर उसके हाथ पड़ गए। इन इंसानी पिंजरों की हड्डियों से जाहिर था कि इससे पहले भी टॉर्चर सेंटर का जल्लाद चीफ मालिक राम कई लोगों को कुएं में गिराकर हलाक कर चुका है। ये इन बदनसीबों की हड्डियों के पिंजर थे। मगर कमांडो शेर खान को इन मुर्दा हड्डियों से कोई सरोकार नहीं था। वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर हाथ फेरता गोल दायरे की शक्ल में घूमने लगा। एक जगह उसके सर के साथ ऊपर से लटकती हुई कोई चीज टकराई। वो वहीं रुक गया। बंद कुएं के अंधेरे में उसने हाथ ऊपर करके लटकती हुई चीज को छुआ। वो कोई रस्सी नुमा चीज थी। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि ये किसी दरख्त की जड़ है जो कुएं की दीवार में किसी जगह से निकली हुई है। उसने उसे 2-3 झटके दिए। दरख्त की जड़ मजबूत थी। शेर खान ने दरख्त की जड़ को दोनों हाथों में पकड़े रखा और अपने दोनों पांव कुएं की दीवार के साथ लगा दिए। फिर वो रस्सी को पकड़ पकड़ कर कुएं की दीवार पर अपने हाथ पांव चलाता रहा। 6-7 फुट ऊपर चढ़ने के बाद दरख्त की वो जड़ तो खत्म हो गई, मगर उसकी जगह उसे एक और जड़ मिल गई जो ऊपर दीवार में से बाहर निकली हुई दीवार के साथ लगी हुई थी। कमांडो शेर खान के दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि कुदरत उसकी मदद कर रही है और उसने उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए एक सबब पैदा कर दिया है। 10-11 फुट ऊपर जाकर दरख्त की ये जड़ भी खत्म हो गई। शेर खान ने दोनों पैर कुएं की दीवार से टिकाए हुए थे। उसने दरख्त की जड़ को एक हाथ से थाम रखा था। ये जड़ भी कुएं की दीवार के अंदर से बाहर निकली हुई थी। उसने दूसरे हाथ से दीवार को टटोला। दरख्त की एक और जड़ दीवार की मिट्टी में दीवार के साथ चिपकी हुई थी। उसने उंगलियों से खुरचा तो जड़ का एक हिस्सा उसके हाथ में आ गया। शेर खान ने उसे झटका दिया। दरख्त की जड़ दीवार से अलग हो गई। ये जड़ भी रस्सी की तरह कुएं की दीवार के साथ ऊपर को चली गई थी। शेर खान दरख्त की दीवार में से निकली हुई जड़ों को पकड़ पकड़ कर कुएं की आधी दीवार का फासला तय कर चुका था। तीसरी जड़ को पकड़ने के बाद वो दीवार से पांव टिकाए मजीद ऊपर चढ़ गया। ये जड़ कुएं की मुंडेर से 2 फुट नीचे तक गई हुई थी। वो कुएं की मुंडेर से 2 फुट के फासले पर पहुंच चुका था। उसे कुएं के ढके हुए धाने में से आती जंगल की ताज़ा हवा महसूस हो रही थी। वो जानता था कि मालिक राम अहमक नहीं है। उसने शेर खान के कुएं से बाहर निकलने का पूरा इंतजाम भी किया होगा और बाहर कोई ना कोई सिपाही पहरा भी दे रहा होगा। कम से कम उस वक्त तक बाहर पहरा मौजूद रहता था जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि शेर खान कुएं के अंदर सांप के काटे या दम घुटने से मर गया है। बहुत जल्द उसे इसका सबूत मिल गया। कुएं के बंद धाने की दर्जों में से जो ताज़ा हवा अंदर आ रही थी उसमें शेर खान को तंबाकू के धुएं की बू महसूस हुई। ये इस बात की अलामत थी कि कुएं के बाहर पहरेदार मौजूद है और सिगरेट पी रहा है। कमांडो शेर खान ने कुएं में से बाहर निकलने का रास्ता दरियाफ्त कर लिया। अब उसे इस लम्हे का इंतजार था जब बाहर बैठा संतरी वहां से चला नहीं जाता। शेर खान दरख्त की जड़ों को पकड़कर कुएं की दीवार के साथ पांव टिका टिका कर नीचे उतर आया और कुएं की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। कुएं के अंदर मच्छरों की भरमार थी। मच्छर शेर खान को पूरी तरह काट रहे थे, मगर उसे ये तकलीफ भी बर्दाश्त करनी थी। सारी रात इस तरह मच्छरों को मारते गुजर गई। बाहर दरख्तों में जंगली परिंदों के बोलने की आवाजें आने लगी। शेर खान ने ऊपर देखा। कुएं के ढके हुए धाने के किनारों की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। फिर उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई कुएं की छत पर चल रहा था। उसे छत पर से किसी भारी पत्थर के लुढ़काने की आवाज आई। उसके बाद किसी ने कुएं के धाने पर गिराए हुए तख्ते को एक तरफ घसीटना शुरू कर दिया। शेर खान जल्दी से दीवार से अलग होकर एक लाश की तरह झाड़ियों और गले सड़े पत्तों के ऊपर लेट गया। वो नींवा आंखों से कुएं के धाने को देख रहा था। ऊपर से तख्ता हटा दिया गया। कुएं के अंदर दिन की रोशनी आने लगी। फिर एक आदमी ने झांक कर कुएं में देखा। ये वही सिपाही हो सकता था जो रात भर कुएं के बाहर पहरा देता रहा था। उसने आवाज देकर कहा, हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। फिक्र न करो, आईजी साहब ने तुम्हारी जान बख्शी का हुक्म दे दिया है। क्या तुम जिंदा हो? जिंदा हो तो जवाब दो, हम तुम्हें बाहर निकालें। शेर खान समझ गया कि ये एक चाल है। सिपाही सिर्फ इस बात की तसल्ली करना चाहता है कि शेर खान मर चुका है या जिंदा है। शेर खान उसी तरह लाश की तरह पड़ा रहा। उसने कोई जवाब न दिया। फिर ऊपर से टॉर्च की रोशनी नीचे डाली गई। टॉर्च की रोशनी शेर खान की आंखों पर पड़ी तो उसने आंखें बंद कर ली और जिस्म को बेहिस्सो हरकत किए रखा। सिपाही ने ऊपर से 3 मरतबा आवाज देकर पूछा, जिंदा हो तो आवाज दो ताकि हम तुम्हें बाहर निकालें, तुम्हें माफी मिल गई है। मगर शेर खान उसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। न उसने कोई हरकत की और ना ही कोई आवाज निकाली। सिपाही समझ गया कि कुएं में इतनी बुलंदी से गिरते ही कैदी की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो मर गया है। वो ये भी जानता था कि अगर कैदी बेहोश हुआ तो भी बंद कुएं में भूखा प्यासा रहकर 1-2 दिन में मर जाएगा। सिपाही ने लकड़ी के तख्ते से कुएं का मुंह बंद कर दिया और उस पर दोनों भारी पत्थर रखे और टॉर्चर सेंटर में पहुंचकर चीफ मालिक राम को बढ़ा चढ़ा कर बताया कि कैदी मुजाहिद मर चुका है और उसकी लाश ने गलना सड़ना भी शुरू कर दिया है। मालिक राम ने पूछा, तुमने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली थी कि वो मर गया है? सिपाही ने कहा, सर मैंने खुद लाश पड़ी देखी है। मैंने ऊपर से 6-7 पत्थर भी मारे मगर लाश ने कोई हरकत न की। कुएं में लाश की बदबू फैली हुई थी। उसके बाद मालिक राम ने कोई सवाल न किया। दूसरी तरफ जब सिपाही कुएं का मुंह बंद करके चला गया तो कमांडो शेर खान ने बाहर निकलने की जिद
जद्दोजहद शुरू कर दी। एक बार वो रिहर्सल कर चुका था। दरख्त की पहली जड़ को पकड़कर वो दूसरी जड़ तक आया, वहां से दूसरी जड़ की मदद से तीसरी जड़ को पकड़ा और तीसरी को पकड़कर वो कुएं के धाने से 2 फुट नीचे आ गया। आगे उसकी मुहिम का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होने वाला था। उसने दीवार में से निकली हुई दरख्त की जड़ को दोनों हाथों से पकड़कर अपने दोनों पांव कुएं की दीवार के साथ अटकाए हुए थे। एक खतरा ये भी था कि दरख्त की जड़ टूट न जाए। दरख्त की जड़ टूट जाने से उसे चोट लगने का खदशा भी था और उसके बाद कुएं से बाहर निकलने का इम्कान भी हो सकता था। कुएं के बंद थाने के पास उसके ऊपर रखे तख्ते की दर्जों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। इस रोशनी में शेर खान ने सूरत हाल का जायजा लिया। उसका जहन तेजी से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। उसने किसी न किसी तरह और काफी मुश्किल के बाद दरख्त की जड़ को पकड़कर अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया। उसके दोनों हाथ फारिग थे। अपने पांव उसने बदस्तूर कुएं की दीवार के साथ टिकाए हुए थे। उसकी पोजीशन बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह वापडा के लाइन मैन पेटी से अपने आप को खंबे के साथ बांधकर बिजली की तारों की मरम्मत किया करते हैं। शेर खान ने दोनों बाजू ऊपर किए तो उसके हाथ कुएं पर रखे तख्ते तक पहुंच गए, मगर वो तख्ते के इतने करीब नहीं थे कि वो दोनों हाथों का जोर लगाकर तख्ते को खिसकाने की कोशिश कर सकता। उसे ये डर भी था कि अगर तख्ते को इधर उधर करते हुए पत्थर लुढ़क गया और उसकी आवाज पैदा हुई तो मुमकिन है कि सिपाही अभी बाहर ही हो और वो फौरन वहां आ जाए और शेर खान पर फायर करके उसे दोबारा कुएं में गिरा दे। उसे ये खबर नहीं थी कि सिपाही वहां से जा चुका है। शेर खान ने एक जगह कुएं की दीवार में से थोड़ा सा बाहर निकले हुए पत्थर पर पांव जमा लिया। इसी तरह काफी जद्दोजहद के बाद वो दूसरा पांव भी गोल दीवार पर एक जगह टिकाने में कामयाब हो गया। उसने दीवार को पकड़कर अपने आप को जरा सा ऊपर उठाया। नीचे गिरने का खतरा नहीं था क्योंकि उसने अपने आप को दरख्त की जड़ के साथ बांधा हुआ था। उसका एक हाथ कुएं की मुंडेर तक पहुंच गया। उसने कुएं पर रखे लकड़ी के तख्ते को हाथ से जोर लगाकर एक तरफ खिसकाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। उसने दूसरी और तीसरी बार कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि वो खा कुछ करे कुएं के ऊपर पड़े हुए तख्ते को एक तरफ नहीं खिसका सकेगा, जबकि तख्ते के ऊपर 2 वजनी पत्थर भी रखे हुए हैं। उसने देखा कि कुएं के मुंह पर रखे तख्ते के नीचे जिस जगह से रोशनी की किरणें कुएं में आ रही थी, वहां बारिश के पानी ने बहकर छोटी सी ढलान सी बनाई हुई थी। उसने दरख्त की जड़ को अपनी कमर के गिर्द एक और बल दे दिया। इसका यह फायदा हुआ कि वो दीवार के और करीब हो गया। उसने जरा सा उचक कर अपने दोनों हाथ कुएं की मुंडेर पर उस जगह टिकाए जहां से बारिश का पानी बहने से ढलान सी बनी हुई थी। उसने एक हाथ से वहां से मिट्टी खुरचनी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी। उसने इतनी मिट्टी गिरा ली कि नीचे से ईंट निकल आई। उसका दूसरा हाथ मुंडेर को थामे थक गया था। उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और कमर के गिर्द बंधी हुई दरख्त की जड़ के सहारे दीवार पर पांव टिकाए पीछे को हट गया। 2-3 मिनट के बाद उसने दोबारा उचक कर कुएं की मुंडेर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मुंडेर की ईंट को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करने लगा। बारिशों ने इस जगह को काफी नरम कर दिया था। थोड़ी सी मजीद कोशिश के बाद उसने एक ईंट उखाड़ कर नीचे कुएं में गिरा दी। 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद शेर खान ने एक और ईंट और एक और पत्थर अपनी जगह से उखाड़ कर नीचे फेंके। अपने सोचे हुए मंसूबे के तहत वो अपने काम में लगा रहा। 3-4 मिनट कुएं की मुंडेर के नीचे से मिट्टी इधर उधर हटाता रहा, ईंट और पत्थर को खिसकाने की कोशिश करता रहा और रुक कर थोड़ी देर आराम करता। उसके बाद फिर अपनी जद्दोजहद में मसरूफ हो जाता। आधे घंटे की थका देने वाली जद्दोजहद के बाद शेर खान ने कुएं के ऊपर रखे हुए तख्ते के नीचे 6-7 ईंटें और पत्थर नीचे गिरा दिए। अब वहाँ इतनी जगह बन गई थी कि वो उसमें से रेंग कर गुजर सकता था, लेकिन अब सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। उसे उछलकर कुएं की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़ना और रेंग कर बाहर निकलना था। इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई दरख्त की जड़ से अपने आप को अलग करना था। दरख्त की जड़ से अलग होते ही नीचे कुएं में गिर पड़ने का खतरा था। वो सोच में पड़ गया। बज़ाहिर ये नामुमकिन बात थी। इस दौरान दरख्त की जड़ दीवार में जिस जगह से बाहर निकली हुई थी उस जगह पर मुसलसल जोर पड़ने की वजह से मिट्टी नीचे गिरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर शेर खान कुछ और देर तक दरख्त की जड़ के साथ लटका रहा तो जड़ टूट जाएगी और उसका फरार का सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा और फिर वो शायद कभी इस मौत के कुएं से बाहर ना निकल सके। वहाँ सिर्फ एक ही तरकीब काबिल अमल दिखाई दे रही थी और शेर खान को उसी तरकीब पर अमल करना था। अगर उसमें कामयाब हो गया तो हो गया, वरना फिर उसकी किस्मत में अंधे कुएं में गिरकर मौत को गले लगाना ही था। ये एक बेबसी और बेकसी की मौत थी जिसके लिए शेर खान बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे हालात में आदमी के अंदर कुदरती तौर पर एक माफौकुल फितरत ताकत पैदा हो जाती है और जिस इंसान के सीने में ईमान की शमा रोशन हो, जिसका अज़्म बुलंद हो, जिसमें जिंदा रहने और अल्लाह की राह में जहाद करने का जज्बा सलामत हो, उसके अंदर ये ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। कमांडो शेर खान को अपने अंदर इस माफौकुल फितरत ताकत का एहसास हो गया था। उसने कलिमा पाक पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और जितना वो उछल सकता था उछलकर कुएं की मुंडेर को पकड़ लिया। उसके दोनों हाथ कुएं की मुंडेर पर सही जगहों पर पड़े। दरख्त की जड़ को उसने उछलते वक्त ही हाथ से तोड़ दिया था। अपने बाएं हाथ से उसने मुंडेर में से बाहर निकले हुए एक पत्थर को पकड़ रखा था। यहाँ अब देर लगाने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि उसके जिस्म का सारा बोझ दोनों हाथों पर पड़ा हुआ था। अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल थी कि उसने दूसरा हाथ मुंडेर के शगाफ के दूसरे किनारे पर जमाया और थोड़ा सा और उचक कर अपना जिस्म कंधों तक मुंडेर के शगाफ से बाहर निकाल लिया। अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद से कमांडो शेर खान को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अता हुई थी, वरना कोई बड़े से बड़ा कमांडो भी इस अंधे कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था। शेर खान ने रिंग रिंग कर अपना बाकी का जिस्म भी कुएं
कुएं की मुंडेर पर से बाहर निकाला। कुएं के ऊपर रखा हुआ तख्ता वैसे का वैसा ही पड़ा था, उस पर दोनों भारी पत्थर भी वैसे ही पड़े हुए थे। कुएं से बाहर निकलते ही शेर खान ने देखा कि धूप बिल्कुल गायब हो गई थी और आसमान पर काले काले बादल छा रहे थे। वो वहीं औंधा पड़ा रहा। उसने घास में से आहिस्ता से सर उठाकर इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया। वहाँ उसे कोई सिपाही दिखाई न दिया, लेकिन किसी सिपाही की मौजूदगी का खतरा मौजूद था। उठकर चलने के बजाय कमांडो शेर खान वहीं जमीन पर पड़े पड़े अंधे कुएं की मुखालिफ समत को रेंगने लगा। जंगल में वो खुली जगह थी जहाँ वो रेंग रहा था। घास और झाड़ियाँ कहीं थी भी और कहीं जमीन बिल्कुल बंजर थी। वहाँ उसे दूर से देखा जा सकता था, लेकिन शेर खान एक फौजी कमांडो की तरह जितनी तेज कोहनियों के बल रेंग सकता था रेंगता चला जा रहा था। सामने कुछ फासले पर ऊंची झाड़ियाँ थी। इन झाड़ियों के पीछे जंगल के घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता था। शेर खान ऊंची झाड़ियों में पहुंचकर रुका और फिर उठकर बैठ गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे जंगल का खाली हिस्सा सुनसान पड़ा था। ढके हुए अंधे कुएं के तख्ते पर भारी पत्थर उसी तरह मौजूद थे। वो आहिस्ता से उठा और झुककर दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। अंधे कुएं में गिरते वक्त उसके कूल्हे में चोट लगी थी। दौड़ते वक्त कूल्हा दर्द करने लगा था, मगर उसने कोई ख्याल न किया और दौड़ते हुए दरख्तों में पहुंच गया। अब वो सीधा होकर तेज तेज चलने लगा। इस जंगल के बारे में उसे सिर्फ इतना ही इल्म था कि ये गोंडा और सतीलगढ़ के गिरदोनिवाह का जंगल है और ये जंगल शुमाल की जानिब नेपाल की सरहद तक चला जाता है और मशरिक की समत सूबा बिहार के जंगलों में मिल जाता है। कमांडो शेर खान ने अपना रुख मशरिक की तरफ कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।